Hello student, good afternoon. I think so, in previous lecture we discussed about metal and its reactivity towards acids, means what happen when metal react with acid. And today in this topic we discuss about reactivity of metal and non-metal, means what happen when metal and non-metal react. Actually, why metal and non-metal react together? Actually, it react to complete its octet. According to class 9th, octet means 8 electron in valence shell. Means when element have 8 electron in valence shell, then it is known as it have complete octet and it is stable element or stable systems, you can say. So in this video we discuss about first how do metal and non-metal react. Generally metal and non-metal react to understand its complete its octet, means 8 electron in valence shell. To complete their octet in 8 electron valence shell, element donate electron or accept electron. Maybe element donate or maybe accept. Actually it is tendency of metals. All metals try to donate electron and all non-metal try to accept electrons. So when metal donate electron, then it get positive charge, and when non-metal don't accept electron, then it get negative charge. So it is tendency of non-metal to accepting electron and tendency of metal to donating electron. So in this video we discuss about some compounds that is formed by metal and non-metal. Generally the compound which is formed by metal and non-metal known as ionic compounds, and we discuss about some features on some property of ionic compound. But after some times, first I discuss about how metal and non-metal react and complete its octet. So for completing its octet you need general electronic configuration that you have done in class 9 to 8 8 18 rule, Borbori 2n square rule. So this rule. Today I not apply all concept, I apply only rule and find answer. Solution I discuss here. First I say reactivity of element can be understood as the tendency of attain the completely filled valence cell. Valence cell, about valence cell, the outermost cell of atoms का जो सबसे बाहर वाला cell है, that is known as valence cell. So I take an example. Suppose I take example sodium. Atomic number of sodium 11, and we do electronic configuration 2 8 and 1. So 1 electron, it is valence cell. If I make electron dot structures, then atomic structure you can say 2 electron in inner cell, 8 electron in second cell, third 4 5 6 7, or 3 3 6 to 8, and last cell that is 1 electron, and this cell is known as valence cell. And the electron which is present in valence cell, means this electron is known as valence electron. Actually how we say it is metal, and how we say it donate electron or accept electron. Actually I want to tell you, if an element have 4 electron or less than 4 electron in valence cell, then it try to donate electron. If element have more than 4 electron in valence cell, then it take electron or it accept electron and behave like non-metal. So it is it have 1 electron in valence cell, so it donate electron, it donate and get positive charge. So if it make any compound, then it make Na plus. Suppose I take other example, Mg, atomic number 12, its electronic configuration 2 8 and 2. In valence cell 2 electron, it is less than 4, so it try to donate electron. How many electron? While it not get complete octet, suppose it donate 1 electron and it get Mg plus 2 charge. Now it electronic configuration 2 8 and 1, and again it donate 1 electron because it is not have complete octet, so it get 2 8 8 and Mg plus charge. So now it donate again 1 electron, 1 total 2 electrons, so it have complete octet. In Hindi I want to say, if element donate electron, means it try to complete it octet, मतलब ये अपने octet को complete करना चाहता है. अदरवाइज अगर वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इसका मतलब क्या, वो अपने ऑक्टेट को भी कंप्लीट करना चाहता है, चाहे वो दे रहा हो चाहे ले रहा हो. लेकिन अगर वो दे रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज. बट अब ये बात आती है, वो कैसे पता चलेगा देगा इलेक्ट्रॉन या फिर लेगा. तो हमने आपको बताया, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल, बैलेंस सेल में
4 इलेक्ट्रॉन है या उससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा। 4 के केस में क्या होता है, देता भी नहीं लेता भी नहीं, शेयर करता है। एक्चुअली आप कह सकते हैं 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा और 4 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर 4 से ज़्यादा है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल है, 4 से कम है तो मेटल। बट आपके लेवल तक हम ये बात नहीं कर रही है 12th तक सही, ये सिर्फ 10th क्लास तक ही सही है। तो चलिए, तो आपको इतनी बातें पता चल गई और आपको बैलेंस सेल के बारे में भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन देते हैं। कभी कभी पूछता है ना कि वो इलेक्ट्रॉन लेते क्यों देते क्यों, तो आप ये बोलेंगे कि टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, आप मतलब बैलेंसी को मतलब स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ही क्या करता है एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को देता है या फिर लेता है। तो हमने एक और हेडिंग बनाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली आई वांट टू मेक अ कंपाउंड MgCl2 that is known as magnesium chloride. So to form the compound first we need electron dot structure Mg. I know and you also know Mg have atomic number 12. Its electronic configuration 2 8 and 2 means its outer shell have total 2 electron. Means if I make electron dot structure then I make like this, मतलब कि मैग्नीशियम के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और अभी आप खुद ही देख के बताइएगा इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। और दूसरा ये क्या, क्लोरीन Cl2 है, मतलब ये Cl 2 बार, ना कि ये Cl2 एक बार हम बनाएंगे। हम हमेशा एटम के लिए ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, जैसा कि आपको क्लास 9 में पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 7, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख पा रहे होंगे इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन थे और इसके आउटर मोस्ट में कितने 7, लेकिन ये एक और बनाएगा। अभी तो एक ही क्लोरीन का हुआ। चलिए क्लोरीन हम इधर बना देते हैं 1 2 3, सॉरी यहाँ तो ऐसे ही इसका बनाते हैं 2 8 एंड 7 और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख पा रहे होंगे इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये 4 से ज्यादा है कम है, तो आप देख रहे हैं ज्यादा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा अपने पड़ोसी से। और इसमें भी देख पा रहे होंगे ये आउटर मोस्ट में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, पर किससे लेगा, जिसके साथ जुड़ा होगा। तो आप देख रहे हैं ये किसके साथ जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ। तो मैग्नीशियम में आप चेक करते हैं देने लायक है कि नहीं। हाँ, मैं मांगने चला गया और देने लायक था ही नहीं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। और ये भी व्यवस्था हमने जो आपको बताई कि 4 से कम, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन एक इस क्लोरीन को दे देगा और एक इस क्लोरीन को देगा। जब ये इस क्लोरीन को देगा और इस क्लोरीन को देगा तो ये बन जाएगा Mg प्लस प्लस। तो अभी आपने देखा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये था। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो कितना बचेगा 2 एंड 8। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने क्या किया, ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। चलिए क्लोरीन में देखते, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो क्या बन गया होगा, क्लोरीन माइनस। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 8। इसका भी देखिए अब आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो 3 3 6 और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा ना, तो ये आ गया। और यहाँ पर भी हम एक एक्स्ट्रा दिखा देते हैं कि ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, Cl माइनस 2 8 एंड 8। देख रहे होंगे आप दोनों का। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट में 8 8 हो गए, इसके भी इसका भी। अब देखिए इस पे चार्ज क्या आएगा, तो ये इस तरह से है। अगर हम आपको कहते हैं इसको आप तोड़ के लिखिए चार्ज के फॉर्म में, तो आप इसमें 2 लोग हैं, दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए। Mg 2 प्लस चार्ज या +2 चार्ज, जो भी आपको लिखना है, 2 बार प्लस प्लस लिख दीजिए या +2 लिख दीजिए। अब क्लोरीन है, क्लोरीन तो आपने देखा कि 2 एटम लगे हैं, तो Cl माइनस। अब आप ये मत कहना सर आपने तो 1 माइनस लगाया, इस पे 2 चाहिए, दोनों बराबर होंगे तभी बैलेंस होंगे। नहीं, आप 2 बार क्लोरीन लिखिए, इसका मतलब ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं, एक प्लस चार्ज को ये बैलेंस कर देगा, एक दूसरे को ये, तो आपका ये कंपाउंड बनकर आ गया। एक्चुअली ये एक साल्ट है। और आपने क्या देखा, Mg इसमें क्या था, मेटल, और नॉन मेटल क्या था, क्लोरीन। तो आपने देखा कि जब मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट किए तो क्या बनाए, साल्ट बनाए, और एक दूसरे की बैलेंसी को भी कंप्लीट कर दिए। मतलब आप कह सकते हैं ऑक्टेट को भी कंप्लीट कर दिए। ऑक्टेट कंप्लीट होने पे क्या हुआ कि अब हमारा जो कंपाउंड बन गया, और कैसा कंपाउंड बना, आयनिक बना। हम आयनिक कंपाउंड क्यों बोलेंगे, तो आयनिक कंपाउंड इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब इनको हम आपस में ब्रेक करेंगे तो ये आयन के फॉर्म में ब्रेक होंगे, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसको मिटाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं।
चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का ले लेते हैं, मतलब कि NaCl का। अब आसान है, आप मेरे साथ करिए या खुद से कर सकते हैं। सोडियम, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये किसमें टूटेगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो बैलेंस ही पता होगी, किसकी कितनी बैलेंसी होती है। चलिए अगर नहीं पता है तो सोडियम के बारे में बात करते हैं। ये मेटल है कि नॉन मेटल? एटॉमिक स्ट्रक्चर 11, सॉरी एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन इसके बाद बैलेंस सेल में। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मेटल हो गया। अगर 4 से कम है तो ये मेटल है। चलिए क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, जैसा कि अभी आपने किया था 2 8 7। अब भाई 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 से बड़ा है तो क्या हो गया, नॉन मेटल। अगर ये नॉन मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अगर ये मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर डोनेट करेगा चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक्सेप्ट करेगा चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। कंपाउंड कैसे बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो आप क्या करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लीजिए। सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का कितना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 एंड 1। इसका कितना था, 2 8 एंड 7। देखिए भाई ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जैसे इसने दिया इस पे क्या आ गया होगा, यानी प्लस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 एंड 2 8 2 8। अब देखिए ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन आया इस पे क्या आया होगा, क्लोरीन माइनस। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 8 एंड 8। तो देख रहे हैं दोनों बैलेंस है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये हमारा कंपाउंड बन गया। अब फटाफट नोट कर लीजिए, और आपको कुछ हम होमवर्क देते हैं, जिसे आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे ही आपको कंपाउंड बनाते हैं, AlCl3 के, BeCl2 के, नहीं BaCl2 के आप बनाइएगा, और आप बनाइएगा CaCl2। ऐसे ही आपको ढेर सारे कंपाउंड बनाने हैं और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाने हैं। तो आप ऐसा ही बनाने का प्रयास करिएगा। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। मतलब ये जो कंपाउंड बन रही है कैसे हैं आपस में, NaCl क्या है, ये एक आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें आयन बन रहे टूटने के बाद में, आयनिक बॉन्ड है। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड। चलिए हम आखिरी हेडिंग के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इसको मैं मिटाना पड़ेगा क्योंकि नई हेडिंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। एक्चुअली इसकी जो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होगी, ध्यान क्या, आप खुद ही डेली लाइफ पे एग्जांपल लेकर समझाएंगे हम आपको, ध्यान हो जाएगी। पहले जो प्रॉपर्टी है ना, आयनिक कंपाउंड जो फिजिकल स्टेट होता है इसका सॉलिड होता है। साधारण से आपको एग्जांपल देते हैं, इसका अभी हमने NaCl लिखा था, इसका नाम क्या है, कॉमन साल्ट, जो आप घर पे नमक यूज करते हैं। तो कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। इसका जो फिजिकल फॉर्म होता है क्या है, सॉलिड होते हैं। दे आर सॉलिड इन नेचर। हम लिख देते हैं यहाँ पर, दे आर सॉलिड इन नेचर। मतलब ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं नेचर में। और आप कह सकते हैं ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, ब्रिटल। अब आप कहेंगे सर ये ब्रिटल क्या होता है, एक्चुअली ये जो ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब भंगुर होता है। अब भंगुर भी आप नहीं जानेंगे, इसका मतलब ये किस सब्सटेंस को आप ऐसे लिए छोड़ दिए फर्श पर कहीं पर तो चकनाचूर हो जाए, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल में टूट। जैसे एलम को आपने कभी तोड़ा होगा सिलबट्टे पे, तो छोटे छोटे पार्टिकल में खट से टूटता है। ग्लास अपने मूवी में देखा होगा, जब एक्टर्स ग्लास पे अटैक करता है तो ग्लास पार्टिकल में टूट जाते हैं। ऐसे नेचर को जो खट से कई पार्ट में टूट जाए उन्हें बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो ये जो दे आर सॉलिड इन नेचर एंड ब्रिटल होते हैं, मतलब ब्रिटल मतलब भंगुर होते हैं। और दूसरा जो है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड का, और 2-3 बार पूछा उन्होंने। दे हैव हाई MP, मध्य प्रदेश नहीं है भाई साहब, एंड BP, ये ब्लड प्रेशर भी नहीं है। मेल्टिंग मीन्स होता है, सॉरी MP मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट, BP मीन्स होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसमें जो होता है बहुत ज़्यादा हाई
हाई आप कह सकते हो, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। पर ये क्यों होता है, ये नहीं पूछता सीबीएसई की ज़्यादा होता कम, वो पूछता क्यों होता है। तो आप कहेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग force of attraction, due to strong force of attraction between atom और मॉलिक्यूल कह सकते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली हम आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप में नहीं है ये, कभी यूपी बोर्ड में हुआ करता था, वो आपको सीधा ये 12th में मिलेगा, जो ये साल्ट का स्ट्रक्चर है, और 11th में थोड़ा सा मिलेगा। ये जो हमारा साल्ट होता है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अब आप समझेंगे नहीं तो बना भी नहीं पाएंगे, परेशान भी मत होइएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपसे एक बार में बन जाए, ये बनना थोड़ा कठिन काम है। कुछ तो वो बैठे होंगे ठान के कि आज हम बना के छोड़ेंगे, पर बनने वाला नहीं, एक बार में हम आपसे बता दे रहे हैं। चलिए, अब ये आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये क्रिस्टल है, जैसे ये Na है तो ये Cl अल्टरनेट पे ये फिक्स होता है, ये हमारे साल्ट का स्ट्रक्चर है। तो अभी आप इसको प्रयास ना करिए, हम आपको फिर से इसी पे एक वीडियो बना देंगे कि ये कैसे बनाते हैं। तो आपको बनाना नहीं है, इतना कठिन स्ट्रक्चर होता है, इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर इन्हें हम हीट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं इस बॉन्ड को तोड़ने में। जो ये NaCl के बीच में बॉन्ड होता है, इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है, इट कंडक्ट electricity in molten state due to presence of free electron। अब आपको फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, पर हम आपको इतना बता दे रहे हैं, ये जो सीबीएसई बोर्ड का ये भी क्वेश्चन था कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मॉल्टन स्टेट में ही क्यों होती है। एक्चुअली जब ये मॉल्टन स्टेट में होंगे पिघले हुए में, तो जैसे ये सपोज कर लीजिए सोडियम है, ये Na+ बनाएगा Cl-, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसका डिस्चार्ज हुआ होगा ना, ये कुछ देर तक मीडियम में रहता है, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की जब तक ये एक्सेप्ट ना करे, तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन मॉल्टन में होगा तो क्या होगा, दोनों टूटे रहेंगे, दोनों तो कंपाउंड बना नहीं लेंगे, जब सॉलिड बनाएंगे तो दोनों कंपाउंड बना लेंगे मिलके, तभी ऐसा होगा। तो अगर ये सॉलिड हो जाएगा तो कंडक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रिसिटी। जब ये पिघली हुई अवस्था में होगा, इससे नमक आप लिए, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आप ऐड कर दीजिए, भाई साहब वो कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे ही आप उसका सोल्यूशन बना लेंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो ये इसीलिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सीबीएसई बोर्ड ने पूछा था कि इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन स्टेट में क्यों होती है। एक्चुअली मॉल्टन स्टेट में क्या होगा, वो आयन के फॉर्म में होगा, आयन के फॉर्म में उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो करती है। और लास्ट है सॉल्युबिलिटी, ये हमारा सॉल्युबल होता है, इट सॉल्युबल इन वाटर but not soluble in kerosene, oil और पेट्रोल। नमक को अगर आप केरोसिन ऑयल में डाल देंगे या पेट्रोल में तो ये सॉल्युबल नहीं होता। जनरली ये क्या होता है ना, हमारे वाटर में होता है, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है। अब पोलर नॉन पोलर को लेके आप क्लियर मत रहिए, क्योंकि ये 11th का है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बताऊंगा फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इतनी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। और आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो NCERT के ही क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है। तो पेज नंबर 49 पर जो इंडेक्स के क्वेश्चन पड़े हैं, पेज नंबर 49 पर जो क्वेश्चन है इंडेक्स में, ये सब के सब आज के आपके होमवर्क हैं और सब इसी से लग जाएंगे। तो आप ट्राई कीजिएगा। अधिकतर में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है, तो आप ट्राई कीजिए, आपसे लग जाएगा। नहीं लगता तो आप ग्रुप में मैसेज डालिए।